Screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, as far as VLSI design pre-labs are concerned, first thing I just want to make you clear, these questions are not descriptive questions. These I have given you just to explore and revise your digital electronics and all, and Viva voice questionnaires. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाफ पेज के या डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है तुम लोगों को. ठीक है, तो पर्टिकुलरली इसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है, in that I gave, like, suppose define De Morgan's theorem, explain the fundamental of VHDL, and difference between VHDL Verilog, what is Moore and Melee machine. So only 4 to 5 lines you need to write down, and all the pre-labs I just suggest you, अपन practical तो one by one करेंगे, but I just suggest कि you write down pre-lab of all practical whenever you get time. ठीक है, so pattern यही रहेगा. In a file, first page will be your name and your subject, everything. Second is your index. After index, particular first practical है तो उसकी pre-lab आएगी, and then the experiment. How to write that experiment, that I will tell you today only. Fine. So ये है जैसे second half header का, इसमें भी हमने pre-lab is not very much close to this practical, but yes, of course, I just give you those questions which make you more aware for the VHDL or a digital electronics. Like जैसे parallel adder है तो उसमें entity architecture क्या होता है, मिले मूर machines क्या है, in a flip flop what do you mean by don't care condition, and SR latch, NAND gate, what is propagation delay, power dissipation. This question generally used to ask by the external meanwhile your practicals. Okay, and then in our registers you have like what are the capabilities of VHDL, significance of conditional signal assignment statement, how will you compare component declaration and component instantiation. ये तुम्हारे structural programming में use होता है. The difference between a counter and a, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट अगर कई बार हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो वी आर अनआंसरेबल टू द एक्सटर्नल. सो व्हाट डिफरेंस बिटवीन काउंटर एंड रजिस्टर, क्या डिफरेंस होता है? रजिस्टर हैज इनपुट एंड क्लॉक एज वेल, whereas काउंटर हैज नो इनपुट. काउंटर इटसेल्फ मींस अ पर्टिकुलर सर्किट जिसमें हमें क्लॉक दे रहे हैं और वो सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है. ठीक है, देन 4-bit बाइनरी सिंक्रोनस काउंटर. In this ASIC, FPGA and all is going to be there. Inverter designing using CMOS logic में ये जो परचेज वर्जन हमारे यहाँ है, इसको इसके क्वेश्चन भी तुम अगर नेट पे डालोगे, you will come to know what is the utility of EDA 16.2, what are those things, scalar data type and all. So basically these are very simple and easy going questions, and 4 to 5 लाइन से ज्यादा हर एक को नहीं लिखना है. डोंट गेट लाइक डिसअपॉइंटेड. 5 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? 5 क्वेश्चन 2 pages. That used to be the standard one. Your senior also used to be there. Questions हर साल चेंज होते हैं, तो उनके जो भी क्वेश्चन रहते थे एक पेज पे वो 3 करते थे, नेक्स्ट पेज पे 2. दैट्स इट. ये तुम कर लोगे. फिर भी कुछ इशू आए, सो आई एम ऑलवेज हियर. फाइन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग Xilinx software पे program, once I just giving you an hint how to write program. Like after doing pre-lab, what you need to do, experiment 1 suppose it is there. I prepared this lab manual sort of thing for you, and अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर का इशू 10 दिन में सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर इन स्पाइट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर आई विल एक्सप्लेन इन दिस वन. मीन्स आई प्रिपेयर्ड ऑल योर 11 प्रैक्टिकल्स हैंड्स ऑन. ठीक है, बट अगर नहीं कर पाओगे देन आई जस्ट एक्सप्लेन यू, और फिर यही सॉल्यूशन है. मतलब वही रहता है ना, कुछ नहीं से कुछ हो, तो
फिर यही है कि इन प्रैक्टिकल्स को तुम्हें लिखना है और जो जो डायग्राम्स मैं बताती जाऊंगी जो मैंने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे बनाए हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट लेके और वो तुम्हें लगाने रहेंगे। बट दिस इज नॉट वेरी गुड सोल्यूशन। ये मैं जस्ट अल्टरनेट दे रही हूँ क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक अ गर्ल अबाउट टू मैरी द पर्सन। इस तरह से मेरा सिचुएशन रहता है कि ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, तुम पॉजिटिव यादें पॉजिटिव मोटिव से जाओ। तो आई यूज टू बी बिट सॉफ्ट बट यस ऑफकोर्स अगर 2-3 बच्चों का भी होगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी पढ़ना चाहते हो और कोशिश तुमने पूरी की। ठीक है, नाउ सी हाउ यू नीड टू राइट डाउन द प्रोग्राम इज ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम हम लिख रहे हैं डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट लॉजिक गेट्स लैप लैप दिस ऑब्टेन इट्स नंबर ऑफ गेट एरिया पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें जो टूल यूज होना है दैट इज Xilinx 8.1 मैंने किया है तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी। थ्योरी में फिर जैसे हमेशा अपन लिखते हैं तो थ्योरी में तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है थ्योरी में जस्ट जो लॉजिक गेट जैसे एंड नैंड एक्सॉर एक्सनॉर बना रहे हैं इसके अलावा मैं तुम्हें और नॉट गेट भी बताऊंगी बिकॉज एंड और एंड नॉट ये बेसिक गेट है। ये सब आज की क्लास में अपन यही बनाएंगे ताकि एक तुम्हें हैंड्स ऑन में थोड़ा इजी गोइंग पता रहे। ये लॉजिक गेट इसकी थ्योरी में कुछ नहीं करना, लॉजिक सर्किट डायग्राम बना के यू नीड टू एक्सप्लेन ट्रुथ टेबल बाय ट्रुथ टेबल सो दैट यू विल कम टू नो हाउ माय एंड गेट वर्क। व्हेन एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज गोइंग टू बी 0 एंड वाइस वर्सा इज गोइंग टू बी देयर फॉर द NAND गेट। व्हेन एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। दिस इज एक्सॉर। एक्सॉर के केस में क्या होता है, एक्सॉर गेट में फॉर एक्सॉर गेट व्हाट इज यूज्ड टू बी देयर, सी व्हेन माय बोथ इनपुट इज वाइस वर्सा मतलब 1 is 0 अनदर इज 1 1 is A1 है और ये when both inputs are opposite output is going to be 1। when both are same like 0 0 है तो 0 1 1 है तो भी 0 है। जब दोनों अपोजिट रहेंगे तब आउटपुट 1 आएगा। इन द केस ऑफ एक्सॉर एक्सनॉर में व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, दिस इज रॉन्ग हियर इट नीड्स करेक्शन। एक्सनॉर में जस्ट इसका उल्टा होता है, जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे इन दैट टाइम आउटपुट इज कमिंग 1। तो इसमें 0 0 और 1 1 पे 1 रहेगा, बाकी में दोनों में 0 आएगा। तो तुम्हें सबसे पहले इन अ प्रोग्राम यू नीड टू राइट डाउन द ऑब्जेक्ट, देन टूल टू बी यूज, देन थ्योरी यू नीड टू राइट डाउन, देन VHDL प्रोग्राम। ये भी तुम्हें हाथ से ही लिखना है, ये सारी चीजें तुम्हें हाथ से लिखनी है। ये प्रोग्राम ये तो मैं तुम्हें थ्योरी में भी 5th यूनिट में करा चुकी हूँ। फिर जो भी प्रोग्राम्स है सबके प्रोग्राम्स लिखने। फिर आफ्टर मेकिंग द प्रोग्राम हम जब इसे रन कराते हैं सो RTL स्कीमेटिक यूज टू कम। सो दिस इज RTL स्कीमेटिक्स। वो तुम्हें स्क्रीन वहां से पैंट में लेके और इसके ये जरूर तुम RTL स्कीमेटिक और सिमुलेशन वेवफॉर्म ये जरूर डेफिनेटली तुम्हें क्या करना है, DOC या पैंट में जाके कॉपी करने, स्क्रीनशॉट लेके और उसका प्रिंट लगाना टिल बिगिनिंग। मतलब फाइल तुम सॉफ्ट कॉपी में गूगल क्लासरूम में भी जब भी मैं समेशन डेट दूंगी सबमिट करोगे तब भी यही पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्ट टूल थ्योरी VHDL code that you need to write down by your hand, RTL schematic, synthesis report अगर लेना चाहो तो चलेगा, अदरवाइज RTL schematic and these waveforms। ये waveforms आई हैं जैसे A और B and Y, this you need to take a screenshot and print out लगाने रहेंगे। जैसे ये AND का है, NAND, XOR, XNOR। अब हम नेक्स्ट पे नहीं जाके पहले मैं यही प्रोग्राम तुम्हें लाइव अपन करके देखेंगे एंड मैं ये इस पॉजिटिव वे में चल रही हूँ कि होपफुली बाय द सैटरडे और नहीं तो नेक्स्ट थर्सडे तक तुम्हारा डाउनलोड हो जाए। अगर नहीं होता है सो आफ्टर नेक्स्ट सैटरडे अगेन मैं यही जो मैनुअल सॉर्ट ऑफ मैंने जो चीज़ बताई है दैट आई विल एक्सप्लेन यू। बट सीखोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जाम होंगे तो वो तो लाइव तब तक तो कॉलेज खुल जाएगा। आई थिंक कई मेडिकल कॉलेजेस तो
खुल गए, ठीक है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग नाउ, बी केयरफुल एंड ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ये Xilinx ISC 8.1 आई है। जब भी इसका पूरा जो फोल्डर है, ये भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली जब तुम डाउनलोड करोगे तो इसमें व्हेन यू डाउनलोड इट, ठीक है, तो ये Xilinx ISC करके इस तरह के तुम्हारे आइकन्स आएंगे फोल्डर में। आइडिया प्लेटफॉर्म, ये इसमें ISC की इज देयर, जो एक उसमें ये ISC की रहती है। ये की जब तुम इंस्टॉल करोगे ना, उस टाइम ये की तुम्हें डालनी रहती है। तो ISC की यहाँ रहती है। ये जो सेटअप है, इसको क्लिक करके जैसे ही तुम रन कराओगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर डाउनलोड, तो ये सेटअप रन कराओगे तो वो एक ISC की के बारे में पूछता है, तो वो तुम्हारी इसी फोल्डर में रहती है। ये जैसे ही इंटर करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, फिनिश। देन जैसे ही तुम्हारा सेटअप फिनिश हो जाएगा तो इस तरह के दो आइकन आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। इज इट क्लियर बेटा? अंकित, आंचल, अश्विनी, मनदीप, वंदना, सिद्धांत, ठीक है। शिवांगिनी देखो, यस मैम। ना पर्टिकुलरली जैसे मैंने उसमें बताया एक ISC की है। जैसे ही तुम सेटअप पे क्लिक करोगे, आफ्टर डाउनलोडिंग कंप्लीटली दैट सॉफ्टवेयर, जो फोल्डर तुम्हारा रहेगा उसमें ISC की तुम्हें इंटर कब करनी है? जब तुम सेटअप ऑन करोगे तब। फाइन। एंड जैसे ही तुम्हारा अपलोड हो जाएगा तो इस तरह से ये ISC आएगा। और एंड इट दिस बोथ आइकन इज नॉट ओनली फॉर लाइक 8.1, 9.1 या अभी जो करंटली 14.7 भी चल रहा है। तुम कोई सा भी करोगे। पुराना वर्जन बताने का मेरा पर्पस था कि उसमें तुम्हारा मेमोरी कम लग रहा है, बट अगर तुम्हें जो भी मिल रहा है वो रहता है ना कि स्टैंडर्ड चीज नहीं मिल रही, तो जो भी मिल रहा है तो जो ट्राई कर लो, वो मिल जाए उससे करो, ठीक है। इस तरह से दो आइकन रहेंगे। इसमें ये जो ISC वाला है, दिस इज अवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे, द विंडो इज गोइंग टू बी ओपन। अब यहाँ से मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ईच टाइम तो मैं तुम्हें ये पूरी प्रोसेस बताऊंगी ही नहीं, सो यू कैन राइट डाउन द स्टेप्स ऑल्सो कि Xilinx को ओपन करने के बाद किस तरह से तुम्हें आगे मूव अहेड होना है। इस तरह की दिस विंडो इज गोइंग टू बी ओपन। माई स्क्रीन इज विजिबल? यस सिद्धार्थ, वैभव, ठीक है। सो particularly in this window, ये हमारे इस तरह से शो होता है। इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, ऐसे फाइल, एडिट, व्यू, दीज आर ऑल दी पर्टिकुलर थिंग्स। स्टार्टिंग में हम इसको एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट में हम हमारे प्रोग्राम सेव करते जाएंगे। और वो जो प्रोग्राम है वो हमें किसी लॉजिक फैमिली, जैसे FPGA CPLD नहीं पढ़ा था लास्ट यूनिट में, सो बेसिकली माय दैट प्रोजेक्ट विल बी सेव अंडर अ पर्टिकुलर फैमिली। जैसे ये मैं बता रही हूँ, अभी जो ओपन हुआ है, ये मैंने एक SAR1 करके एक प्रोजेक्ट आई क्रिएटेड 2 or 1 day बिफोर। दैट प्रोजेक्ट इज अंडर माय FPGA फैमिली XA2C, and under this particular family I make the program, ठीक है। बट ये इसी में मैं प्रोग्राम नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक नया प्रोग्राम बनाना बता रही हूँ। क्लियरली उस सारी स्टेप्स को तुम विजुअलाइज करो। एंड आज हम एंड नॉट एंड और लेट्स सी हाउ मेनी कंप्लीट। अगर एक ही लॉजिक गेट का मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, बाकी लॉजिक गेट्स अपन सैटरडे की क्लास में करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक एडर एंड मल्टीप्लेक्सर डिजाइन। तब तक मुझे है कि तुम लोग डाउनलोड कर लो इसे, नहीं तो देखते हैं जैसे, ठीक है।
Now very first step is go to the file. अभी हमें नया project, I am just explaining you how to create new project. So you need to go to the new project. Then project name, whatever you want to give, better you give by your name, or I'm giving you giving as VD, ऐसा VD lab, ठीक है. और ये कहाँ सी में Xilinx में ये जाके सेव होता है, ठीक है. अब इधर आता है सेलेक्ट द टाइप, व्हाट डू यू वांट टू मेक, ठीक है. तो हम स्केमेटिक पे ही जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट करोगे. नेक्स्ट फटाफट नहीं करना है. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू जस्ट क्रिएट योर प्रोजेक्ट. मैंने प्रोजेक्ट बनाया है VD लैब के नाम से. आफ्टर दैट सी रीड दिस. Product category is all, family is automotive, cool runner 2, device is automotive. Yeah, here you can change the family. There are so many families, like जैसे मैंने लास्ट टाइम XA2 ये लिया था, you can change and XA2C 128, सपोज ये ले लिया. उसका जो पैकेज भी है, इसका पैकेज ये जो है VQ100 है, मीन्स ये FPGA में वर्टेक्स. FPGA को और हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, तो FPGA is 2 types, like Spartan and Vertex. So this belongs to Vertex family. Fine. Now synthesis tool is VHDL Verilog, ठीक है. And simulator will be my ISC simulator. Okay. So here बाकी कुछ चेंज नहीं करना रहता. If the device and package you want to change, you can do. ठीक है. Now next, when you press, it is going to ask you new sources. So you just press next. ठीक है. Now see in this window, this is my VD lab, this is my project. Whatever program we will make during this lab of VHDL, all will be in this project name VD. और इसकी लोकेशन क्या थी, वहां आ रही थी ना, C के अंदर Xilinx है मेरा, और उस Xilinx के अंदर मैंने ये VD lab बनाया. फाइन. एंड द फैमिली विच आई सेलेक्टेड XA2C दिस. इसकी यूटिलिटी तुम्हें तब पता चलेगी जब हमारे पास, जैसे किट्स तो है बट वो बहुत आउटडेटेड है, बट कई बार प्रोग्राम यहाँ रन कराने के बाद हम, जैसे तुम्हारी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के किट्स होते हैं ना, वैसे ही FPGA के किट होते हैं, उसको बर्न कराना पड़ता है कनेक्टिविटी और कोडिंग के थ्रू. तो इसलिए हम यहाँ जैसे ये तो परचेज सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी जो परचेज सॉफ्टवेयर रहता है उसमें वो सारी फैमिलीज रहती है जो किट हमारे पास अवेलेबल है. So that give you flexibility that after running smoothly on a software, if you are trying for the hardware, then you can do. फाइन. अब हम इस लॉजिक VD लैब में नहीं जाना है, तुम्हें इस लॉजिक फैमिली के अंदर जाना है. इज इट क्लियर फ्रॉम टिल नाउ? अभी तक हमने खोला और एक प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को हमने Xilinx फैमिली के अंदर इंक्लूड किया, ठीक है. अगर किसी एक स्टूडेंट्स का भी रहता है और अगर वो मुझे कहेगा कि मैडम आई एम अनेबल टू डू दैट, सो आई जस्ट सजेस्ट हिम और हर टू शेयर हिज और हर स्क्रीन एंड देन आई विल हेल्प यू आउट. मतलब अगर रियली सीखना चाहते हो तो कोशिश करो. मैं मान रही हूँ प्रॉब्लम्स हैं, बट मेरे से सॉर्ट आउट हुई है तो तुमसे भी होगी बच्चों, ठीक है. अब क्या करना है, नाउ सी, इस लॉजिक फैमिली जो VD लैब मेरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर, इस फैमिली के अंदर राइट क्लिक करना है तुम्हें. राइट क्लिक करके एज यू सेलेक्ट न्यू सोर्स, सो ये विंडो ओपन होगी तुम्हारी, और या तो तुम इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आई जस्ट सजेस्ट यू, बेस्ट थिंग इज कॉपी पे लिखते जाओ. क्रिएट में न्यू प्रोजेक्ट पे गए, न्यू प्रोजेक्ट में ये फैमिली सेलेक्ट करी, एंड नाउ दिस विंडो ओपन. नाउ फैमिली में जाके राइट क्लिक टू दैट. राइट क्लिक करने के बाद इस विंडो में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, VHDL मॉड्यूल. तो सेलेक्ट VHDL मॉड्यूल, फाइल नेम देना है. मैं तुम्हें जो प्रोग्राम बता रही हूँ वो नॉट गेट कर पा रही हूँ. ऑलवेज वेरी क्लेवर एंड वेरी मच मेच्योर टू गिव नेम. ऐसे XYZ, ऐसे S2 ऐसे कुछ नहीं देना है जो सर्किट बना रहे हो, बिकॉज वट एवर नेम यू विल गिव हियर दैट विल बी योर एंटिटी नेम ऑफ VHDL प्रोग्राम है. फाइन. सो दैट इज VHDL मॉड्यूल में आई वेंट टू द नॉट गेट. नाउ नेक्स्ट जैसे ही करोगे, दैट इज गोइंग टू आस्क यू particularly like input and output. So here itself you give A, ये मेरा input ही है तो ये रहेगा.
देन बी नॉट गेट में वन इनपुट यूज टू बी देयर, क्योंकि मैं सिंगल बिट का बना रही हूँ, एंड वन आउटपुट. सो यहाँ अगर जो इनपुट नहीं है उसको चेंज करना है तो तुम यहाँ से आउटपुट करो. दिस MSB एंड LSB आर यूज टू बी फॉर मोर देन वन बिट. सपोज अगर मैं 2 बिट इन्वर्टर बना रही हूँ, देन यू नीड टू सेलेक्ट हियर. ठीक है, जितने भी बिट का लोगे उसको उसके हिसाब से तुम्हें लिखना रहेगा. ठीक है, नाउ बी इज आउट. नेक्स्ट, फिनिश. जैसे ही तुम ये करोगे, नाउ सी, लुक एट हियर, VD lab is my project. This is my logical family. In that I just created one first program of mine. क्या नाम दिया था मैंने? Not get. ये आ गया. अब इस विंडो पे look at here. In this window, this is the program. Whatever things जो मैंने तुम्हें theory के टाइम हैंड रिटन लिखवाई थी, that this is a very user friendly software and very like बहुत कम हमें इसमें खुद से लिखना रहता. सी, सारी लॉजिकल लाइब्रेरीज आ गई. 4 मेनली रहती है लाइब्रेरी. IEEE use IEEE.std_logic_1164.all, then std_logic_earth.all unsigned. Fine. And after that, now see, this thing also you need not to be right. Entity पूरी आ गई. Why I told give the name proper, because see, this is a NOT gate. So entity का नाम क्या आ गया मेरा? NOT gate. And port में A और B जो है input output अपने आप ही आ गए. Architecture, my architecture name is behavioral. So here I am, जब मैं architecture को end कर रही हूँ तो ये आ गया. और यहाँ क्या रहता है? Entity name is. Only the thing you need to write down the execution part, मतलब how the particular gate is going to behave. जैसे I told you, entity is a particular place where I used to explain, define my input and output, and architecture is a place where I show the relationship between input and output. ठीक है, तो यहाँ नॉट गेट का सिंपली क्या रहता है? B is assigned to, सॉरी, और इसमें असाइन इक्वल टू का साइन इस तरह से रहता है, लेस देन इक्वल टू. नॉट ब्लू में आ रहा है, मीन्स नॉट अपने आप में लॉजिकल ऑपरेटर है जो यहाँ पर रहता है. एंड ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन. इज इट क्लियर? कुछ नहीं किया इस प्रोग्राम में, हमने वहां पे इनपुट आउटपुट दिए. फाइन. एंड हियर जस्ट वी नोटेड डाउन दिस लाइन. और तुम्हें हर प्रोग्राम में यही करना है. देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द एंटिटी and everything, just you need to define the relationship between input and output in the architecture itself. Fine, यहाँ तक clear है? So that I can move ahead. Yes, Vaibhav, Vandana, Siddharth, Pranav, Yes, sir. Ashwin, अंकित. ठीक है, यहाँ तक clear है? यस मैम. इजी बहुत है, लेकिन खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे हमें जाना रहता है. ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया. अब नाउ आई वांट टू चेक वेदर माय प्रोग्राम इज राइट और रॉन्ग. सो सी, 2 विंडो यूज टू बी हियर. एक ये प्रोसेस विंडो रहती है, ये एग्जीक्यूशन. यहाँ पर तो तुम्हारा सोर्सेज आते हैं और यहाँ प्रोसेस. इस प्रोसेसेस में सबसे लास्ट में होता है तुम्हारा इम्प्लीमेंट डिजाइन. तो ये जो इम्प्लीमेंट डिजाइन है, इस पे यू नीड टू डू डबल क्लिक. As soon as you do double click, it is going to be asked, do you want to save the changes in notgate.vhd? vhd फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .vhd है, तो you need to click yes. So ऐसे ये डमरू जैसे घूमता रहेगा. बेसिकली ये हमारा चेक सिंटैक्स हो रहा है, वेदर whatever प्रोग्राम आई did वो सही है कि नहीं. और यहाँ नीचे ये विंडो आती है, कंसोल विंडो, इसमें देखते रहते हैं अपन. जब तक यहाँ राइट या कुछ नहीं आएगा तब तक अपन कुछ भी नहीं करेंगे. अभी हो रहा है, अब देखो राइट आ गया. ठीक है, राइट आ गया है. इट मीन्स दैट पर्टिकुलर जो सर्किट मैंने बनाया है वो ठीक है. फाइन, ये सर्किट है और ये इम्प्लीमेंट डिजाइन में इसका जो प्लस है इसको तुम स्प्लिट करोगे तो सी, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोग्राम. अब नाउ सी, जैसे ही मैंने इम्प्लीमेंट डिजाइन को डबल क्लिक किया था, ऑल थिंग्स आर राइट. मीन्स synthesis is fine, translate is fine, fade and everything, generate programming.
Now just spread this synthesis. So here check syntax में right नहीं आ रहा है तो एक बार उसको भी डबल क्लिक करो. Right आ गया, means it is fine. अब in this implementation design, I just suggest you to take the screenshot of this. See, in implement design, first option is synthesize. In that 4 option is there: synthesis report, RTL schematic, view technology, check syntax. Check syntax tell you what is your practical and particularly whether it is right or not. Now we go one by one. व्यू सिंथेसिस रिपोर्ट पे जैसे ही तुम डबल क्लिक करोगे, दिस इज माय सिंथेसिस रिपोर्ट. दिस यू नीड नॉट टू टेक प्रिंट आउट. और वैसे प्रिंट आउट, हाँ यस, इसको तुम पैंट में ले जाके और इसका प्रिंट लगाओगे तो अच्छा है. वैसे सिंथेसिस रिपोर्ट ये बेसिक ये बताती है कि नॉट गेट बनाने में ये तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है. सपोज हम ह्यूज प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं. इन दैट सिंथेसिस रिपोर्ट tells you how many component, transistor, logic gates, multiplier and flip-flops are used in your particular circuit. जैसे इसमें दिया है ना, फाइल नेम क्या है, फॉर्मेट क्या है, मॉड्यूल, रिसोर्स शेयरिंग, क्या डिजाइनिंग है, HDL सिंथेसिस. ये जैसे देखो फाइनल रिपोर्ट है. फाइनल रिपोर्ट हमने क्या बनाया, एक इन्वर्टर. सो हाउ मेनी थिंग्स आई नीडेड. इन्वर्टर में एक कंपोनेंट ही मुझे चाहिए. और जो तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं है, आई सपोज है क्या, वो पूछा है क्या, गेट, एरिया, स्पीड, डिले. तो ये चीज भी यहाँ दिख रही है. देखो सीपीयू की स्पीड 3.21 से 3.42 है. नंबर ऑफ एरर कुछ भी नहीं है. और ये देखो स्पीड जो है या मेमोरी यूसेज जो इतना हो रहा है वो इसका इतना केबी में हो रहा है. दैट्स इट फॉर दिस. नाउ ये तो तेरी सिंथेसिस रिपोर्ट. ये अभी बहुत छोटा सर्किट है इसलिए इसमें इनपुट और आउटपुट बफर इतने नहीं आ रहे. जब यू विल मेक big circuit, then this thing will come. Now click on a RTL schematic पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह का था. इसको डबल क्लिक करोगे, सी A is my input, B is output और ये इन्वर्टर. Is it clear? This is simply the circuit. ठीक है, ये कहाँ से आया तुम्हारा, RTL schematic. That's it. अब हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में. ये प्रोग्राम है, यहाँ इन सभी विंडो में सब दिख रहा है. देखो ये तुम्हारी सिंथेसिस रिपोर्ट है, ये तुम्हारा इन्वर्टर आ गया. फाइन. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इसका मुझे सिमुलेशन देखना. फाइन. फॉर सिमुलेशन व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ जहाँ सोर्सेज लिखा है हियर यू नीड टू क्लिक एंड गो फॉर द बिहेवियरल सिमुलेशन. एज सुन एज यू गो टू द बिहेवियरल सिमुलेशन यहाँ चेंजेस आ जाएंगे. इन बिहेवियरल सिमुलेशन गो टू दिस गेट. पहले सबसे पहले क्या करना है बेटा, देखो बिहेवियरल सिमुलेशन क्लिक करना है. फिर इस जो भी गेट है तुम्हारा यहाँ जाना है. As soon as you just did behavioral simulation, your left side window has been totally changed. That is Xilinx ISC simulator. That is going to become fine. What you need to do, इधर नहीं जाके सबसे पहले हमें यहीं इस गेट को वापस you need to do right click. Then you need to go for new source. Now here what you need to, प्रोग्राम हम बना चुके हैं. We need to see its simulation. So you need to go for the test bench waveform and give particular name to this simulation के लिए हम जा रहे हैं, not TT. ठीक है, ये दिया. नेक्स्ट करोगे तो वो यहाँ पर अभी तो एक ही प्रोग्राम है, बाकी जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए हैं उसमें से पूछेगा किसको सिमुलेट करना है. जैसे हमारा नॉट गेट है, इसको हम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसको नेक्स्ट किया, फिनिश. फिर ये क्लॉक साइकिल वगैरह तुमसे पूछेगा, इसको करोगे तो इस तरह से आ जाए. ठीक है, अगेन यू नीड टू गो हियर. फाइन. और ये तुम्हारी देखो ए इनपुट आ गया. अब मुझे आउटपुट देखना है तो मैं यहाँ सिमुलेट बिहेवियर पे जाके और इसको डबल क्लिक करूँ. तो यहाँ इनपुट नहीं था इसलिए नहीं आया है ये टीवी में.
Again I go here. What is our issue? Input issue. Input create करना है. जैसे ये है. वंस अगेन वेट अ मिनट, कुछ इशू आ रहा है इसमें. वंस अगेन अपन वापस उसमें जाएंगे, वापस इसकी टेस्ट बेंच वेवफॉर्म में क्लॉक में कुछ चेंजेस करने हमें. तो हम यहाँ पर नॉट गेट पीटी दे देंगे. यहाँ तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना है. सी सिंगल क्लॉक, मल्टीपल क्लॉक, और ये दिया है तुम्हें कॉम्बिनेशनल पे सेलेक्ट करना है. कॉम्बिनेशनल पे क्योंकि ये हमारा सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है. ठीक है, ए मेरा कॉम्बिनेशनल है. ये नैनो साइकिल वगैरह दे दिया है. फिनिश. जैसे ये दोगे तो इस तरह से तुम्हारा ये आ रहा है. अब इसको तुम मैनुअली इनपुट दे सकते हो. अब ये क्लॉक नहीं आई है. ठीक है, अब यहाँ पे जाके अब इसमें बिहेवियरल पे गए हम. नाउ सी, इसको यहाँ रखो. सी ए इज माई इनपुट. ये 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 आ गया. हैंस इट इज वेरीफाई. तुम्हें पूरा प्रोग्राम वगैरह सब हाथ से लिखना है. ओनली द RTL schematic and this waveform you need to do print screen and then you need to take the print out. Is it clear? अब इसके आगे का मैं तुम्हें नेक्स्ट जो सैटरडे अपनी लैब लूंगी मैं उसमें कराऊंगी. और ट्वाइस इन अ वीक लेने का मेरा पर्पस यही है कि I can give you 10 to 15 days sufficient time to complete the file work. ठीक है, is it clear all? है ना. फिर भी कुछ डाउट रहेंगे तो इट इज नॉट द थिंग. नेक्स्ट लैब जो अपनी सैटरडे है उस दिन मैं तुम्हें एंड गेट और गेट ये दोनों बनाना, क्योंकि ये तीनों मेरे यूनिवर्सल गेट हैं. एवरीवेयर इट इज गोइंग टू बी यूज. मतलब हर प्रोग्राम में नैंड और नॉट यूनिवर्सल गेट है, बट ये एंड और नॉट तुम्हारे हर कहीं यूज होंगे. तो ये अपन करेंगे होपफुली. मुझे जब तक लगता है किसी एक आध स्टूडेंट्स का भी हो जाएगा अगर डाउनलोड, तो पैरेलली तुम लोग भी मेरे साथ परफॉर्म करना. आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम. यू विल नॉट फील कि तुम ऑफलाइन हो, सॉरी ऑनलाइन हो और अपन नहीं कर पा रहे. यू जस्ट हैव कि हम ऑफलाइन ही इस लैब को ले रहे हैं, बशर्ते तुम में से किसी का हुआ तो. ठीक है, तो एंड और बाकी दूसरे गेट्स मैं तुम्हें सैटरडे कराऊंगी. अभी वापस से एक बार अटेंडेंस दे दो एंड सी यू ऑन सैटरडे. और एटलीस्ट प्री लैब वगैरह लिखना तो स्टार्ट कर दो. ठीक है, और बहुत यूजर फ्रेंडली है ये प्रोग्राम, हो जाएगा. और पैटर्न अपना लैब में ये रहेगा. जैसे अभी तो फर्स्ट लैब है, इसको मैं इंट्रोडक्टरी मान रही हूँ. दैट इज वाई ये प्रैक्टिकल अपन 2 लैब्स में करेंगे. बाकी नेक्स्ट लैब में मैं तुम्हें बता दूंगी कि थर्सडे कौन सा प्रोग्राम अपन करेंगे, तो उसकी पूरी प्रिपरेशन तुम पहले से रखो. ठीक है, ओके. नाउ गिव योर अटेंडेंस प्लीज. आंचल, अंकित, अश्विनी सॉरी, मनदीप. प्रेजेंट मैम. मनदीप. और ये आजकल कृष्ण कुमार बघेला कहाँ गया हुआ है? भावना, दिशा, कोई भी अटेंड नहीं कर रहा है. ओके फाइन, दैट इज देयर मोटिव. नीरज, नीरज नहीं है. ओके, प्रणव, प्रेजेंट. मोहित, वंदना,
सिद्धार्थ, शिवांगी, Present, ma'am. वैभव मंगल, Shivangi present, ma'am. कुणाल माथुर भी तो विजिबल था. कहाँ है कुणाल माथुर? अभी नहीं है शायद ना. ओके, थोड़ा बहुत तो समझ में आया. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? कुछ प्रॉब्लम आई या क्या है? वो तुम हैंड्स ऑन करोगे तो तुम्हें और ठीक लगेगा बेटा. और नेक्स्ट लैब में वापस यही सारी स्टेप, जैसे मेरे को है कि सिमुलेशन थोड़ा फास्ट हुआ मेरा, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से कर लेंगे. डोंट वरी. ठीक है Ma'am, Vandana also present. ओके वंदना. ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लैब में इसको और एक बार मैं सारी स्टेप्स रिकॉल करूंगी तो हो जाएगा. ठीक है, तब तक कोशिश करो सॉफ्टवेयर हो जाए तुम्हारा इंस्टॉल, है ना. इट इज नॉट अ वेरी बिग डील. मैं जब तुम्हें कह रही हूँ टेनर ईडीए भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये तो हो ही जाए. ठीक है, चलो ओके बाय बेटा.